تر کریں صلوات سے۔ کوشش کریں جو پیچھے صاحبان بیٹھے ہیں وہ دو قدم آگے آ جائیں، یا آگے جگہ خالی ہے، آ جائیں آگے آ جائیں، بہت مہربانی۔ ایک مرتبہ پھر اپنی زبانوں کو معطر کیجئے صلوات سے۔ اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی ابتہی البہی سراج المضی کوكب الدری صاحب الفقار السکینہ مدفون بأرض مدینہ عبد المؤید ورسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین خاتم النبیین رحمتا للعالمین وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وآلہ طیبین طاہرین المعصومین والمظلومین، اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی کتاب المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق واصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجٌ مُنِيرًا۔ صلوات۔ سب سے پہلے عظیم اللہ کی عظیم بارگاہ میں عظیم دعا ہے، مالکان عزت بارگاہ عزت میں ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بانیان مجلس، حاضرین مجلس، ناظرین مجلس اور ذاکرین مجلس کے میرا مالک رزق معرفت اور رزق ولایت میں اضافہ فرمائے۔ زندگی کی آخری سانسوں کی آخری گھڑی ہو زبان پر ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے۔ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے۔ محشر کی پہلی گھڑی ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے۔ ہماری ماؤں بہنوں کے پردے سلامت فرمائے۔ میرے مالک ہماری سب سے پہلی آخری واجباً اوجباً لازماً ضروری دعا آقا دو جہاں سلطان زمان رہبر دوران وارث کائنات حضرت سرکار ولی العصر کے مقدس ظہور میں تاجیل فرمائے۔ دعائیں قبولیت تک بجائیں، سہارا درود کلیں اور بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ۔ تو جو ہے بات شروع کی جائے، قبلہ اجازت ہے؟ محبان نبی و اہل بیت نبی، عزاداران مظلوم کربلا، شیعان حیدر کرار، میں نے اللہ کے قرآن سے مقدس ترین کتاب سے ایک ایسی آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس میں وہ خالق لم یزل، وہ معبود برحق، وہ معبود مسجود واجب الوجود اللہ اپنے طیب طاہر اور مطہر حبیب کا قصیدہ خود پڑھ رہا ہے۔ مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، یہ ہاتھ کسی کمینے کے محتاج نہ ہو۔ میں نے قبلہ وہ آیت پڑھی ہے جس میں وہ اللہ اپنے حبیب کا قصیدہ خود پڑھ رہا ہے۔ فرمایا یا ایہا النبی، اب یہ بھی اس خالق کی اپنے حبیب سے محبت کا بہت بڑا اظہار ہے کہ بابا جی اللہ نے قرآن میں بسم اللہ کی بیس سے لے کے قرآن کی سین کی والناس کی سین تک پورے قرآن میں جب بھی کسی نبی سے خطاب کیا تو فرمایا یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا اسماعیل، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، لیکن جب بھی کسی نبی کو پکارا تو کہا اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، اے اسماعیل، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، لیکن جب اپنے حبیب کی باری آئی تو پھر یا نہیں کہا، پھر اے نہیں کہا، پھر خدا کہہ رہے یا ایہا النبی، اے میرے خاص نبی، بولو اے میرے خاص نبی، یا ایہا النبی، اے میرے خاص نبی، انا ارسلناک، خدا نے کہا حبیب اے میرے خاص حبیب،
اے میرے خاص نبی ہم نے آپ کو نازل کیا، ہم نے آپ کو نازل کیا، ایک لمحہ نہیں، سیکنڈ، ایک منٹ بھی ضائع نہیں کیا، نہ کبھی کرتا ہوں۔ خدا نے کہا میں حبیب ہم نے آپ کو نازل کیا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدن، حبیب ہم نے آپ کو نازل کیا شاہد بنا کر، نازل کیا شاہد بنا کر، گواہ بنا کر۔ میرے اللہ ہماری شریعت میں تو نے کہا کہ تو نے اپنے حبیب کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، شاہد بنا کر بھیجا ہے، تو میرے مالک ہماری شریعت یہ کہتی ہے گواہ اسے کہتے ہیں جو موقع پہ حاضر ہو، گواہ اسے کہتے ہیں جو موقع پہ حاضر ہو، جس نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اسے گواہ کہتے ہیں، اسے شاہد کہتے ہیں۔ میرے اللہ تو نے کہا ہے کہ تیرا حبیب شاہد بن کے آیا ہے، تیرا نبی گواہ بن کے آیا ہے، تو میرے اللہ تو اللہ اتنا بڑا، تو رب العالمین ہے، تیرا رحمت للعالمین نبی ہے، تو خالق لم یزل ہے، تو معبود برحق ہے، تو اتنا بڑا اللہ ہے، تیرا اتنا بڑا نبی ہے، تیرا حبیب نبی ہے، تیرا طٰہٰ نبی ہے، تیرا یاسین نبی ہے، تیرا مزمل نبی ہے، تیرا مدثر نبی ہے، اتنا بڑا نبی ہے، تیرا اتنا بڑا نبی ہے، تمہارے خاتم النبیین نبی ہے، رحمت للعالمین نبی ہے، تو میرے مالک تیرا اتنا جو حبیب ہے، تیرا پیارا نبی ہے، تو پھر تو نے اسے ایک چھوٹے موٹے واقعے کا گواہ بنا کے تو نہیں نہ بھیجا ہوگا، پھر تو نے کسی بڑی عالم کا گواہ بنا کے بھیجا ہوگا، پھر میرے مالک کس چیز کا گواہ بنا کے بھیجا ہے؟ کیونکہ ہماری شریعت کہتی ہے گواہ اسے کہتے ہیں جس نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، تو میرے مالک میرا نبی بھی گواہ بن کے آیا ہے، تو میرا نبی کس چیز کا گواہ بن کے آیا ہے؟ تو خدا نے کہا حسنین میرا نبی، تیرا میرا حبیب، تیرا نبی اس بات کا گواہ بن کے آیا ہے کہ یہ زمین و زمان لگے ہیں تو نبی کے سامنے، یہ آسمان لگے ہیں تو نبی کے سامنے، یہ زمینیں بچھی ہیں تو نبی کے سامنے، یہ آسمان لگے ہیں تو نبی کے سامنے۔ فرمایا میرا حبیب اس بات کا شاہد بن کے آیا ہے، اس بات کا گواہ بن کے آیا ہے کہ یہ درخت لگے ہیں تو نبی کے سامنے، یہ آسمان لگے ہیں تو نبی کے سامنے، یہ جنگلات لگے ہیں تو نبی کے سامنے، بولو میرے ساتھ، یہ جنگلات لگے ہیں تو نبی کے سامنے، یہ قطرے بنے ہیں تو نبی کے سامنے، یہ دریا بنے ہیں تو نبی کے سامنے۔ میرا نبی اس بات کا گواہ بن کے آیا ہے کہ یہ سمندر بنے ہیں تو نبی کے سامنے، یہ کلندر بنے ہیں تو نبی کے سامنے، یہ کتب بنے ہیں تو نبی کے سامنے، یہ ابدال بنے ہیں تو نبی کے سامنے، یہ سالک بنے ہیں تو نبی کے سامنے، یہ محدث بنے ہیں تو نبی کے سامنے، یہ مفسر بنے ہیں تو نبی کے سامنے۔ وہ نبی کہتا میرا اللہ میرا حبیب اس بات کا گواہ بن کے آیا ہے کہ یہ تابعی بنے ہیں تو نبی کے سامنے، یہ صحابی بنے ہیں تو نبی کے سامنے، یہ گورے بنے ہیں تو نبی کے سامنے، یہ کالے بنے ہیں تو نبی کے سامنے۔ اللہ کہتا میرا حبیب اس بات کا گواہ بن کے آیا ہے کہ یہ آدم بنا ہے تو نبی کے سامنے، نوح بنا ہے تو نبی کے سامنے، ابراہیم بنا ہے تو نبی کے سامنے، اسماعیل بنا ہے تو نبی کے سامنے، عیسیٰ بنا ہے تو نبی کے سامنے، موسیٰ بنا ہے تو نبی کے سامنے۔ کھپر کی والو اللہ کہتا ہے میرا حبیب اس بات کا گواہ بن کے آیا ہے کہ جبریل بنا ہے تو نبی کے سامنے، میکائیل بنا ہے تو نبی کے سامنے، اسرائیل بنا ہے تو نبی کے سامنے، جبرائیل بنا ہے تو نبی کے سامنے۔ خدا کہتا ہے او کھپر کی والو حسنین انہیں بتا دے میرا نبی اس بات کا گواہ بن کے آیا ہے کہ پوری کائنات میں اللہ بناتا بھی رہا، اپنے حبیب کو دکھاتا بھی رہا۔ بولو جو حسین کرو، مولا آپ کو سلامت رکھے، یہ ہاتھ کسی کمینے کے محتاج نہ ہو۔ اپنے حبیب کو کائنات دکھاتا بھی رہا، کائنات بناتا بھی رہا، اپنے حبیب کو کائنات دکھاتا بھی رہا۔ کون ہے میرا نبی؟ کس عزت کا مالک ہے نبی، کس شان کا مالک ہے نبی۔ نبی نے فرمایا، پہلے علامہ صاحب پڑھ رہے تھے کہ نبی ہمارا وہ نبی ہے جس نے فرمایا ہے کنت نبیا آدم ما بین الماء متین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کی جستجو میں تھے۔ تو میں اس جملے کی اگلی بات بھی تشریح کر دیتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا تھا۔ نبی نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کی جستجو میں تھے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ اس وقت بھی نبی تھے جب آدم مٹی اور پانی کی جستجو میں تھے؟ آپ اس وقت بھی نبی تھے، اس وقت بھی نبی تھے، آپ اس وقت بھی نبی تھے۔ نبی نے فرمایا گستاخ نہ بن، جب تے ہے الف مل کے تھا نہ بنا تھا میں نبی تھا۔ جیو جیو، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ نبی نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ اس وقت بھی نبی تھے؟ فرمایا ہاں میں اس وقت بھی نبی تھا۔ فرمایا میں اس وقت نبی تھا، نہ کوہ جبل کا کنگرا تھا، نہ موجود دریا کا قطرہ تھا، نہ ریگ صحرا کا ذرہ تھا، نہ وسط زمین کا چپا تھا، نہ اوقات زمانہ کے لمحات تھے، نہ شب و روز کے اختلاف تھے۔ میں نبی تھا، نہ شب و روز کے اختلاف تھے، نہ نور و ظلمات تھے، نہ پان کی لطف مجید تھی، نہ باغ گل کی رونق تھی، نہ باد نسیم کی سرسراہٹ تھی، نہ آفتاب
की नूरे अफशानियाँ थी, न चरिंदो चरागा की पुकार थी, न करवट लैलो नहार थी। बाबा जी न नीला वो आसमान का आशियाना था, न साकी था, न कौसर था, न पैमाना था। नबी कहते मैं नबी था, न साकी था, न कौसर था, न पैमाना था, न जमीन का फर्श था, न पहाड़ों के तकिए थे, न हवा में तरन्नुम था, न फजा में तबस्सुम था। मैं नबी था, न फजा में तबस्सुम था, न महकते हुए फूल थे, न कलियों में चटक थी, न फूलों में महक थी, न सब्जे में लहक थी, न सूरज में रोशनी थी, न चांद में चमक थी, न हीरे में धमक थी, न लीमू में खटास थी। मेरा नबी था, न लीमू में खटास थी, न खंड में मठास थी, न नीला गो आसमान का आशियाना था, न साकी था, न कौसर था, न पैमाना था, न पहाड़ों के तकिए थे, न गारों की गहराइयां थी, न यूसुफ की जुदाइयां थी, न यकूब की दुहाइयां थी, न खत की खबर थी, न इश्क की नजर थी। मेरा नबी था, मेरा नबी था। जो हैरान हो कि मुझे देख रहे हो, मेरा नबी था। न पहाड़ों की हैरानियां थी, न पहाड़ों की ऊंचाइयां थी, न गारों की गहराइयां थी, न खत की खबर थी, न इश्क की नजर थी। एक ला इलाह की हस्ती थी, एक इल्लल्लाह की मस्ती थी। नबी ने फरमाया अल्लाह बनाने वाला था, मैं मोहम्मद बनने वाला था। अल्लाह कवी था, मैं उसकी कुव्वत बन के आया। अल्लाह रहीम था, मैं उसकी रहमत बन के आया। अल्लाह करीम था, मैं उसकी कुदरत बन के आया। अल्लाह जलील था, मैं उसकी जलालत बन के आया। और नबी फरमाते हैं मैं अल्लाह, मैं नबी अल्लाह वो अल्लाह था, मैं नबी अल्लाह बन के आया। वो ला इलाहा इल्लल्लाह था, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह बन के आया। या मौला आपको सलामत रखे। वो ला इलाहा इल्लल्लाह था, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह बन के आया। कौन है, किस अजमत के मालिक है नबी, किस शान के मालिक है नबी। आओ कुरान से पूछते हैं, मौला आप रिज़्क़ में इजाफा फरमाए। आओ कुरान से पूछते हैं कि आए अल्लाह के कुरान। मैं कुरान के दरवाजे पे गया, बाबा जी मैंने कुरान से पूछा, मैंने कहा ए अल्लाह के कुरान, ए तैयब ताहिर किताब, तू मेरे आका के दिल पे नाज़िल हुआ है, तू मेरे आका के कल्ब पे नाज़िल हुआ है। ए कुरान, तूने देखा है कि मेरा नबी बोलता कैसे था। भाईजान ए कुरान, तूने देखा है कि मेरे नबी की जुल्फें कैसी थी। कुरान, तूने देखा है कि मेरा नबी बोलता कैसे था। कुरान, तूने देखा है मेरा नबी चलता कैसे था। कुरान ने कहा हाँ मुझे पता है मेरे नबी की जुल्फें कैसी थी। कुरान कहता है हाँ मुझे पता है मेरे नबी का माथा कैसे था। मैंने कहा अच्छा तुझे पता है तो आज मैं मजलिस पढ़ने आया हूँ, जिक्र हुसैन सजा है, आज ये धरती जिक्र हुसैन से वजू कर रही है। मजलिस हुसैन और जिक्र आले मोहम्मद सजा हुआ है, आज खपर की में मजलिस हुसैन सजी है। आ कुरान मुझे बता तो सही, मैं इन मोमिनों को बताऊं, तू मुझे बता, मैं इन मोमिनों को बताता हूँ कि नबी की जुल्फें कैसी थी, नबी का माथा कैसे था, नबी का चेहरा कैसे था। कुरान कहता है आजा। मैंने कुरान के साथ सफर किया, सर उठाओ कुरान सुनो। मैंने कुरान के साथ सफर किया, कुरान ने कहा मैं तुझे बताऊं, नबी की जुल्फों पे नजर पड़ी तो वल्लैल इज़ा सजा नजर आए। नबी की जुल्फों पे नजर पड़ी, आखो सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। नबी की जुल्फों पे नजर पड़ी तो वल्लैल इज़ा सजा नजर आए। कुरान कहता है नबी के माथे पे नजर पड़ी तो वही शम्स व ज़ुहा नजर आए। कुरान कहता है नबी की आंखों पे नजर पड़ी तो मा ज़ाग़ल बस्र व मा तग़ा नजर आए। कुरान कहता है नबी के कानों पे नजर पड़ी तो वह उज़्नु व इयात उनके कान नजर आए। बाबा जी कुरान कहता है नबी के लबों पे नजर पड़ी तो वह लिसान व शफ़तैन नजर आए। कुरान कहता है नबी की जुबान पे नजर पड़ी तो वह यंतिकु अनिल हवा की जुबान नजर आए। कुरान कहता है नबी के हाथों पे नजर पड़ी तो यदुल्लाह फौक़ अयदीहिम के हाथ नजर आए। कुरान कहता है नबी के सीने पे नजर पड़ी तो अलम नशरा लका सदरक नजर आए। कुरान कहता है नबी की पुश्त पे नजर पड़ी तो वज़ाना काना विज़रक नजर आए। कुरान कहता है नबी के जिक्र पे नजर पड़ी, नबी के जिक्र पे नजर पड़ी। हैरान हो के न देखो, उस बाप का बेटा हूँ, पूरे पाकिस्तान में महमूद अली शाह हमदानी, और उसने पूरे पाकिस्तान में मदानी शाह के नाम से मशहूर है। हम वो मदानी हैं जिनकी बिजली कभी नहीं जाती। हाँ हाँ हाँ, हम वो मदानी हैं। और बाबा जी मिंबर हुसैन पे लाउड स्पीकर में गरज के अपने बाप का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि जिस पीर को हमने माना है वो भी हर मैदान में जाके कहता था तलवार निकाल, मैं अबू तालिब का बेटा हूँ। जियो जियो मौला, इन हाथों को सलाम। मिल गए हैदरी या
आओ कुरान से पूछते हैं। कुरान कहता है जुल्फों पे नजर पड़ी तो वल्लैल इज़ा सजा नजर आए, माथे पे नजर पड़ी तो वह शम्स व ज़ुहा नजर आए। कुरान कहता है आंखों पे नजर पड़ी तो मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा नजर आए, हाथों पे नजर पड़ी तो यदुल्लाह फ़ौक़ अयदीहिम के हाथ नजर आए, सीने पे नजर पड़ी तो अलम नशरह लका सदरक नजर आए, पुश्त पे नजर पड़ी तो वज़ानका बिज़रक नजर आए, हाथों पे नजर पड़ी तो यदुल्लाह फ़ौक़ अयदीहिम के हाथ नजर आए, जिक्र पे नजर पड़ी तो वरफ़अना लका ज़िक्रक नजर आए, जिक्र पे नजर पड़ी तो वरफ़अना लका ज़िक्रक नजर आए। कुरान कहता है मेराज पे नजर पड़ी तो सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इल्लल मस्जिदिल अक़सा नजर आए। कुरान कहता है नबी नबी रह गया। हसनैन इन खप्पर की वालों को बता, नबी की नालैन पे नजर पड़ी, नबी की जूती पे नजर पड़ी तो मेराज वाली रात सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन से बुलंद नजर आए। मौला आपको सलामत रखे। मौला आपको सलामत रखे। जूती पे नजर पड़ी, कुरान कहता है नलैन पे नजर पड़ी तो मेराज वाली रात सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन से बुलंद नजर आई। अब ये तो कुरान ने बताया था ना कि मेरा नबी कैसा है। मौला दर्जात बुलंद करे। किबला शहीद मोहसिन नकवी साहब के सोने की कलम से चांदी के वर्क पे लिखी गई सतरें, उन्होंने इन्हीं कुरान की आयात का तर्जमा किया है। और क्या कहते हैं? कहते हैं चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सहीफा। किबला चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरैन तकद्दुस के नगी हैं, माथा है कि वहदत की तजल्ली का है बर्क, आरज़ है कि वल फज्र की आयत की अमी है, येसु है कि वल लैल के बिखरे हुए साए, अबरू है कि कौसैन शबे कद्र खुले हैं, गर्दन है कि बर्फर के औट सरैया, लब सूरत यकूत की शवाओं में धुले हैं, कद है कि नबुव्वत के खदो खाल का मयार, बाजू है कि तौहीद की अजमत के अलम है, बाजू है कि तौहीद की अजमत के अलम है, सीना है कि रमज़े दिल हस्ती का खजीना, सीना है कि रमज़े दिल हस्ती का खजीना, पलकें हैं कि अल्फाज रूह लोहो कलम है, बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां, लहजा है कि यज़ां की ज़बान बोल रही है, खुतबे हैं कि सावन के उमड़ते हुए बादल, मेरे नबी के औसाफ बयान कर रहे हैं ना, खुतबे हैं कि सावन के उमड़ते हुए बादल, कर्रात है कि असरार जहां खोल रही है, कर्रात है कि असरार जहां खोल रही है। किबला काबल बाबा सैयद मनीर हुसैन शाह साहब आ गए, इनकी मौजूदगी में जो जुमले इन्होंने नहीं सुने वो इनकी मौजूदगी में अपने लिए बाइस फख्र समझने की हैसियत से दोबारा दोहराता हूँ। शहीद मोहसिन नकवी कहते हैं चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरैन तकद्दुस के नगी हैं, माथा है कि वहदत की तजल्ली का है वर्ग, आरज़ है कि वल फज्र की आयत की अमी है, येसु है कि वल लैल के बिखरे हुए साए, अबरू है कि आंखों सुभान अल्लाह नबी की शान बयान हो रही है। कल्ब में है कि आंखें हैं कि बहरैन तकद्दुस के नगी हैं, माथा है कि वहदत की तजल्ली का है वर्ग, आरज़ है कि वल फज्र की आयत की अमी है, येसु है कि वल लैल के बिखरे हुए साए, अबरू है कि कौसैन शबे कद्र खुले हैं, गर्दन है कि बर्फर के औट सरैया, लब सूरत यकूत की शवाओं में धुले हैं। भाई हाथ खोल तो समझ आवे कि नबी की शान बयान हो रही है। कहता है कि नबुव्वत के कदो खाल का मयार, बाजू है कि तौहीद की अजमत के अलम है, सीना है कि रमज़े दिल हस्ती का खजीना, पलकें हैं कि अल्फाज रूह लोहो कलम है, बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां। अल्लाह ने पता सी गर्मी में जना नहीं बोलना, हवा भी आ गई है, होंदे आखो सुभान अल्लाह। आंखें हैं कि बहरैन तकद्दुस के नगी हैं, बाजू है कि तौहीद की अजमत के अलम है, सीना है कि रमज़े दिल हस्ती का खजीना, पलकें हैं कि अल्फाज रूह लोहो कलम है, बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां, लहजा है कि यज़ां की ज़बान बोल रही है, खुतबे हैं कि सावन की उमड़ते हुए बादल, कर्रात है कि असरारे जहां खोल रही है, ये दांत शिराज़े शबनम के तराशे, यकूत की वादी में धमकते हुए हीरे, शर्मिंदा ताबे लबे दिंदाने पैगंबर, हरफ बसना खानी खामा बसरी है, ये मौज तबस्सुम है कि रंगों की धनक है, ये अक्स मतानत है कि ठहरा हुआ मौसम, ये शुक्र के सजदे हैं कि आयात की तंजील, ये आंख में आंसू है कि अलहाम की रिमझिम, कहने को मलबूस बशर ओढ़ के आया, कहने को मलबूस बशर ओढ़ के आया, लेकिन तेरे अहकाम फलक पर भी चले हैं, उंगली का इशारा था कि तकदीर की ज़रबत, महताब
महताब के टुकड़े तेरे कदमों में गिरे हैं। उंगली का इशारा था कि महताब के टुकड़े तेरे कदमों में गिरे हैं। कहने को फाकों पे गुजरी तेरी रातें, लेकिन इस्लाम आप भी नमकखार है तेरा। तूने ही सिखलाई तमीज़ मनो जज्बा, इंसान की गर्दन पे सदा पार है तेरा। और कौन बताए कि तू उतरा है कहां से, किसको खबर तेरी सरहद है कहां तक। पहुंची है जहां तेरी नालैन की मट्टी, जबरील भी न पहुंचे वहां तक। जबरील भी न पहुंचे वहां तक। मैंने कुरान से कहा, कुरान तुझ में सिर्फ नबी के 99 नाम ही हैं। कुरान ने कहा नहीं, मेरा तो हर्फ हर्फ में नबी छुपा है। मैं तो उतरा ही इनकी शान में हूँ, मैं तो आया ही इनके फजाइल में हूँ। अब ये इनकी अपनी किस्मत है, इन्हें मिले ही 99। अब ये इनकी अपनी किस्मत है। मैंने कहा अच्छा 99 नहीं है, उससे आगे हैं। उन्होंने कहा हाँ आगे हैं। मैंने कहा कुरान बता तो सही, कुरान में और नबी कहाँ है। कुरान कहता है आओ मैं तुम्हें बताऊं कि कौन नबी है, किस अजमत का मालिक नबी है, किस शान का मालिक नबी है, किस इज्जत का मालिक नबी है। आओ हम तुम्हें बताते हैं। नबी के सिर्फ 99 नाम नहीं है, 99 अपने सामने रखना, उससे आगे हम सुनाते हैं कौन नबी है। असले करम नबी है, असले करम नबी है। कुरान कहता है असले करम नबी, असले करम नबी, असले करम नबी। क्या मतलब? असल कहते हैं जड़ को। नबी सिर्फ करीम नहीं है, असले करम है, करामतों की जड़ है। असले करम नबी। कुरान कहता है असले करम नबी, वली नाम नबी, कायदे उमम नबी, काफे बरा नबी, इमाम हुदा नबी, आयत तका नबी, सतह हयात नबी, खित्ते बका नबी, नुक्ते वजूद नबी, कतबे नजात नबी, कौसे सफा नबी, आका सुबहान अल्लाह, कौसे सफा नबी, मरकज़े वफा नबी, नफ्से बसीत नबी, अक्ल मुजर्रद नबी, रवानी सरफ नबी, मिसबा फैदे राह रवा नबी, रूह इर्तका नबी, मस्ताक के लो नबी। 99 से आगे हैं कि नहीं आ गए? कुरान है, कुरान कहता है असले करम नबी, वली नाम नबी, कायदे उमम नबी, काफे बरा नबी, इमाम हुदा नबी, आयत तका नबी, सतह हयात नबी, खित्ते बका नबी, नुक्ते वजूद नबी, कतबे नजात नबी। और बच्चों देखो तुम भी कहना कि नबी सिर्फ 99 नामों वाला नहीं है, नबी के और भी नाम है। 99 नाम नहीं है नबी के, असले करम नबी है, वली नाम नबी है, कायदे उमम नबी है, काफे बरा नबी है, इमाम हुदा नबी है, आयत तका नबी है, सतह हयात नबी है, खित्ते बका नबी है, नुक्ते वजूद नबी है, कतबे नजात नबी है, कौसे सफा नबी है, मरकज़े वफा नबी है, नफ्से बसीत नबी है, अक्ल मुजर्रद नबी है, रवानी सरफ नबी है, मिसबा फैज़ राह रवा नबी है। चलो हैरान होकर देख लो, मुझे क्या पता है, हैरान होकर देख लो। इससे अगर कुछ मिलता है, अली अली करने से मिलता है, हाथ उठाने से कुछ मिलता है। ये हाथ नहीं होता, ये हाथ नहीं होता। जब ये हाथ उठता है ना, इसमें जनाब सैयदा खैरात अता करती है। जिसने खैरात लेना वो हाथ उठा ले। हम तो अली अली करते ही इसीलिए हैं, जमाने को बताते हैं जिनका अली ऐसा है उनका नबी कैसा होगा, उनका नबी कैसा होगा। तुम्हें हम बताते हैं कौन अली है। अदीब, शायर और मुफक्कर अली, नबी के दोष बदोश अदीम उन नजीब सिपाही अली, सफाई करतास पर मुजस्समे की लगे गोहरे बार अली, मैदान कारजार में शमशीर आबदार अली, मैदान जंग के रिजत खवा अली, मिंबर अमन के शीरी सुखन खतीब अली, बाबाजी मिंबर अमन के शीरी सुखन खतीब अली, ऐवान अदल के दीदावर काजी अली, कीश्वर सैफो कलम के कज्जो कला अली, इल्लतो इल्ल के बारे में लाफू रहमान इल्लाहो बाकी सीमानी खेज और ख्याल अंगेज बात कह के खामोश हो जाने वाला मुफक्कर अली, यतीमों और बेवाओं का सरपरस्त अली, मुमलकत शराफत का ताजदार अली, अकली में खलूस का शहरीयार अली, कारवान ज़ुहद इत्तका का सलार अली, वली इलाही अली, मकबूल माबूद अली, सरफरूब आलम जबरूत अली, मुअल्लम मलकूत अली, मलाइका के मसजूद अली, बानिए वलायत अली, बानिए वलायत। तू चुप रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना। बानिए वलायत अली, बानिए वलायत अली, बानिए वलायत अली, सरचश्मे हदायत अली, मुस्ताक इमामत अली, मुसद्दक रिसालत अली, मंबाई सदाकत अली, सरताज सआदत अली, शहनशाह सखावत अली, मालिक शुजात अली, अबुल आइमा अली, यसूबुद्दीन अली, कामिल ईमान अली, नफ्स रसूल अली, ज़ौजाए बतूल अली, ज़ौजाए बतूल अली, अब्दुल्ला के जोरे कमर अली, अबू तालिब के लख्ते जिगर अली, जोहरे जिल किताब अली, गोहरे इंदा हो इल्मुल किताब अली, गोहरे इंदा हो इल्मुल किताब अली। कौन अली है? इस्लाम का नवाब अली, बिशारत का बाग अली, बलागत का चराग अली,
जौहर में इमरान अली, जलाल में यज़दान अली, हिकमत का सुल्तान अली, तकदीर खुदा का हकम अली, तालीम शरीयत का आलम अली, खिलाफत का दायदार अली, खुदावंद आलम का मुख्तार अली, दिलबर नूर जनान अली, रब्बत हक का आईना अली, रिसालत का नगीना अली, जेवर सालेहीन अली, जीनत अर्श बरीन अली, साकिया हौज़ कौसर अली, सखावत का समुंदर अली, शिया का मुअज़्ज़म पेशवा अली, शराफत का बादशाह अली, ज़ल्फ़ एहकाम शरीयत अली, ज़हूर एहकाम शराफत अली, आरिफीन की मार्फत का नाज अली, आबिदीन की इबादत का राज अली, गालब अला कुल्ले गालब अली, गैरत में अबू तालब अली, गैरत में अबू तालब अली। अभी भी हैरान हो के देख रहे हो, तुम्हें पता नहीं चला कि अली किसे कहते हैं? तो अब मैं तुम्हें बताऊं, अली इमाम, अली ऐमन, अली ईमान, अली अमीन, अली सरवर, अली सरदार, अली अलीम, अली आलम, अली इल्म, अली हिल्म, अली हाकम, अली गुफ्तार, अली नसीर, अली नासिर, अली मंसूर, अली मुजफ्फर, अली गालिब, अली अजीज, अली इज्जत, अली अफजल, अली लतीफ, अली खबीर, अली अनवर, अली अनवार, अली सलीम, अली सालम, अली मुस्लिम, अली कय्यम, अली कसूर, अली सफी, अली साफी, अली सूफी, अली सत्तर, अली करार, अली नईम, अली नाम, अली मनाम, अली मालिक, अली सालक, अली रहबर, अली बका, अली बला, अली दुआ, अली शफा, अली बाली, अली आली, अली आला, अली सरवर, अली दाइम, अली कायम, अली साइम, अली राहत, अली रहमत, अली जन्नत, अली कौसर, अली शाह, अली माँ, अली राह, अली गोशा, अली तोशा, अली किश्ती, अली लंगर, अली इस्म, अली जिस्म, अली जान, अली गोहर, अली बहर, अली महर, अली शाह, अली नूर, अली तेज, अली जोहर, अली मुनस, अली यूनस, अली हाफिज, अली नासर, अली लायक, अली फाइक, अली मशहूर, अली सदा, अली जुदा, अली मुसहरी का खुदा। मौला बस हज़ादारों हो गया मेरे हिस्से का फ़ज़ाइल। बस ये दुनिया समझ जाती कि अली किस इज़्ज़त का मालिक है तो अली की बेटियां शाम के बाज़ारों में रही। बड़ा मुश्किल था शाम का बाज़ार। उस वक्त तक मजलिस मुकम्मल नहीं होती जब तक दो आंसू ना बहे, आंखों में नमी ना उतरे। वो शाम से आने वाली बीबी राजी नहीं होती, रो के कहती ये आंसू मुझे दे मेरे हुसैन के जख्मों की मरहमत। मौला हाय कबूल करे। अज़ादारों इतना मुश्किल था ना शाम का बाजार। तेरे लहू रोने वाले इमाम से आके मिनहाल ने पूछा था, मौला शाम के बाजार में सबसे मुश्किल वक्त कौन सा था? आंसू नहीं थे, बादल बरस पड़े आंखों से लहू के। इमाम ने रो के कहा, मिनहाल तूने ये कैसा सवाल पूछ लिया? मिनहाल मेरा जिगर उस वक्त फट गया था जब अगले बदमाश रास्ता नहीं देते थे, पिछले रुकते नहीं थे। अल्लाह अकबर। इतना मुश्किल था बाबा जी शाम का बाजार। एक जुमला पढ़ूंगा और मैं सलाम करने लगा हूँ। इतना मुश्किल था ना शाम का बाजार, सैयदों के लिए बड़ा मुश्किल था अकबर की मौत को बर्दाश्त करना। अकबर की मौत को बर्दाश्त करना सैयदों के लिए बड़ा मुश्किल था। शबीह पैगंबर था। सज्जाद ने अकबर की सीने में बर्छी देखी, मौला सज्जाद रोए, आंसू रोए, खून नहीं रोए। असगर जैसे भाई के गले में तीर देखा, रोए, आंसू रोए, खून नहीं रोए। अपने बाबा की 13 ज़रबे देखी, आंसू रोए, खून नहीं रोए। अपने चचा गाजी के कटे बाजू देखे, आंसू रोए, खून नहीं रोए। कासिम का लाशा पामाल हो के आया, आंसू रोए, खून नहीं रोए। ओनो मोहम्मद जैसे भाई आए, आंसू रोए, खून नहीं रोए। इधर शाम का बाजार आया, सज्जाद की गर्दन में तोक था, हाथों में हथकड़ियाँ थी, पाँव में बेड़ियाँ थी, कमर में ऊँटों की महार की रस्सी थी, कमर झुकी हुई थी सज्जाद की। सज्जाद ने ऐसा मंजर देखा, आंसू रोए, उधर भी खून नहीं रोए। इधर शाम शहर का सदर दरवाजा आज़ादारों बंद था। खुदा पे कहती है 15 अजानें मोहम्मद की बेटियों ने वहीं खड़े होकर सुनी। 15 अजानें सुनी, आलिया की आवाज आई, सज्जाद इस बगैरत से जरा पूछ तो सही, हमें यहाँ क्यों खड़ा किया हुआ है? हमें आगे क्यों नहीं लेके जाता? मौला ने बगैरत से पूछा, और नहीं बता तुम्हें हाँ मैं आगे क्यों नहीं लेके जाता? वो कहता है सज्जाद अभी शाम का बाजार सज रहा है, अभी बदमाश इकट्ठे हो रहे हैं, अभी शाम का बाजार सज रहा है। 15 अजानें मोहम्मद की बेटियों ने बगैर पलानों वाले ऊंट पे सुनी। सदर
शहर का दरवाजा बंद था, अज़ादारो दरवाजा बंद था। इधर दरवाजा जब खुला, मौला सज्जाद की रुकू की हालत थी। बाकर की आवाज आई, मौला बाबा रुकू छोड़, शाम का मंजर देख। मौला ने रुकू छोड़ा, इधर सर उठा के देखा, अज़ादारो शाम का माहौल क्या था। बदमाश नाच रहे थे, तबल बज रहे थे, बगैरतों के हाथ में जाम थे। इधर इमाम ने काफिला दाखिल हुआ, शाम के बाजार में काफिले का दाखिल होना था। मौला सज्जाद ने ये मंजर भी देखा, लेकिन सज्जाद आंसू रोए, वहां भी खून नहीं रोए। इधर शाम के बाजार में काफिला दाखिल हुआ, एक बगैरत एक पर्ची पे एक तहरीर लेके आया, उसने सज्जाद की आंखों के सामने की। इधर पहले तहरीर सज्जाद की आंखों के सामने आनी थी। मौला सज्जाद ने वो तहरीर पढ़ी। जैसे ही अज़ादारो तहरीर पढ़नी थी, सज्जाद का पहला लहू का कतरा आंख से गिरा, पहला लहू का कतरा आंख से जारी हुआ। माँ ऊंट पे तड़प गई, रो के कहती है सज्जाद माँ मर जाए, ओए तू खून क्यों रो रहा है। ओए इस करबला से लेके शाम के बाजार तक ओए कौन सा जुल्म है जो हम पे नहीं हुआ। सज्जाद तू खून नहीं रोया, ओए सज्जाद ये कौन सा जुल्म आ गया, तू खून क्यों रो रहा है। रो के कहते अम्मा दुआ कर तेरे सज्जाद को मौत आ जाए। रोड कहती मौत ना मांग, मुझे वजह बता खून क्यों रो रहा है। रोड कहते अम्मा बगैरत ने पर्ची लिख के भेजी है, सारे रास्ते ज़ैनब ऊंट पे आई है, इस बाजार में पैदल चलेगी। अम्मा ये शराबी का बाजार है, अम्मा तू अली की बेटी, तू मोहम्मद की बेटी। हुसैन